a very immediate and a very big problem is, I'm so proud of what we were able to do with India and with Pakistan. 99.9% want to do it nicely if we can. Obviously, there were U.S. Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. یہ بالکل اب روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر. اب وہ سافٹ ٹارگٹ کی طرف دشمن جو ہے وہ جا رہا ہے جب اس کو فوج کے خلاف ناکامی ہوئی. Very warm welcome to Newsline. میں ہوں ڈاکٹر ماری ذوالفقار خان. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 6 اور 7 مئی سے شروع ہونے والا چیپٹر تو کلوز ہو چکا ہے، گو کہ پراکسی وار اور سفارتی محاذ پر جنگ ابھی جاری ہے. پاکستان سفارتی محاذ پر جارحانہ حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے اور انڈین پروپیگنڈا کو بھرپور طریقے سے نہ صرف کاؤنٹر کر رہا ہے بلکہ بھارت کا اصل چہرہ بھی دنیا کو دکھا رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی وزیر اعظم کا 4 ملکی دورہ بھی ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور دوسری طرف بھارت کی جو اونچی حرکتیں ہیں وہ بھی جاری ہیں. پاکستان کو ایک بار پھر فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کی جو مذموم کوشش ہے وہ ایک بار پھر کی جا رہی ہے. خیر یہ سلسلہ تو جاری رہے گا اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس محاذ پر بھی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن ان تمام حالات میں ایک اہم اندرونی سیاسی محاذ بھی ہے جہاں گرمی بڑھ رہی ہے. بیانات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے. کبھی بیک ڈور چینل رابطوں کی خبریں آتی ہیں تو کبھی چیئرمین پی ٹی آئی اور بیرسٹر سیف کی حکومت کے ساتھ مذاکراتوں کی جو کوششیں ہیں ان کی خبریں آتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کبھی یہ بھی خبر آتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں. مختصراً یہ کہ سیاسی ماحول میں بے یقینی کی فضا پھر سے بن رہی ہے اور ایک ایسے وقت میں بن رہی ہے جب ہمیں اتحاد کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم حالات جنگ میں ہیں اور اس ماحول کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب یہ حالات کس طرف جائیں گے، حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی اور پی ٹی آئی کی سیاسی بقا کی جنگ کے نتائج کیا ہوں گے، آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں فارمر ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب میں جوائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب جوائن کر رہے ہیں اور لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے اظہر جاوید صاحب. تو ایمبیسڈر لیٹ می اسٹارٹ آف ود یو. اب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کو جس طرح سبکی ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں ملٹری فرنٹ پہ سبکی ہوئی ہے، اس کے بعد جو نیریٹو بلڈنگ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سبکی ہوئی ہے. ناؤ دیو سیٹ آؤٹ دی ڈپلومیٹک مشنز، جس کا ہم نے بھی ترکی بائی ترکی جو ہے ہم نے بھی ایک اپنے مشنز جو ہیں بھیجنا شروع کر دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جیسے میں اور آپ پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دی ورلڈ از مور کنسرنڈ کہ ان کو کہاں سے ان کے اکنامک ٹائز کہاں پر لائے کرتے ہیں، کہاں سے ان کو کون بڑی منڈی ہے، کہاں سے فوائد زیادہ ہو سکتے ہیں. اس پورے ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری کتنی سنوائی ہوگی؟ جی بالکل، آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے اس بار اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی دنیا میں. اس سے پہلے جو تھے جب پلوامہ ہوا اس وقت کچھ ملکوں نے جو ہے ان کو تھوڑا زیادہ سپورٹ کیا تھا. اس وقت کوئی ایسی سٹیٹمنٹس بھی آئی تھیں جس میں پاکستان کا ذکر کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں بھی تھا. اس بار ایسا نہیں ہوا، حالانکہ اس بار ان کی کوشش بہت زیادہ تھی پہلے کے مقابلے میں. تو اس کے بعد جب وہ نہیں ہوا اور سارے ملکوں نے زور یہی دیا کہ بس آپ جو ہے نا ایکسرسائز ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں، تو جو ریسٹرینٹ ظاہر ہے پاکستان تو کر ہی رہا تھا، دکھا ہی رہا تھا، ان کی طرف سے ہی اشتعال انگیزی تھی، تو وہ ان کے لیے تھا وہ میسج. تو اس سے زیادہ خوش نہیں تھے. پھر جب یہ سارا جو ہے جو کانفلکٹ ہوا اس میں بھی جو ان کی حالت ہوئی اس سے بھی کوئی ان کو بہت زیادہ جو ہے نا جو فیس سیونگ بھی ہوتی ہے یا ان کو لگا کہ کوئی ٹریکشن ملے گا یہ ہمیں اس دنیا میں، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا. امریکہ جب بیچ میں آیا تو ظاہر ہے امریکن اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے ایمرج کی، ایون کشمیر میں میڈیشن کی بات، یہ تو سب سے بڑا انڈیا کے لیے سمجھ لیں کہ اس سے بڑا کوئی جو ہے نا چیلنج نہیں ہوتا ان کی ڈپلومیسی کے لیے کہ اچانک کشمیر پہ کوئی ملک کہہ دے کہ جی ہم میڈیشن کریں گے، اور وہ بھی امریکہ جیسا طاقتور ملک، دنیا کی سپر پاور واحد. تو اب اس پس منظر میں اس وقت جو ڈپلومیٹک اوفینسو انہوں نے لانچ کیا ہے، ایک طرف تو وہ ڈیلیگیشن جو ہے ششی تھرور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. ششی تھرور بی جے پی کا حصہ نہیں ہے، لیکن ششی تھرور کیوں؟
बिकॉज शशि थरूर जो है सबको पता है कि वो इज एन ऑरेटर बोलने में, eloquent. या वेरी एलोक्वेंट, और जाहिर है कि वो इंग्लिश में भी एक जो है मलका हासिल है। लेकिन देखिए जूत के पाँव नहीं होते, और हक़ाइक़ के बगैर आप जितनी मर्जी लफासी कर लें उसकी वो जो है ना उसकी उस तरह की अहमियत नहीं होती। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने, हमने तो अपना जो नुक्ता नज़र है दुनिया को पहुंचाना है, पहले भी पहुंचाते रहे हैं, और ये अभी जो सारा जो पूरी दुनिया का एक वो बना पस मंज़र जिसके तनाजुर में ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र था उसको ज़्यादा ट्रैक्शन मिली थी। तो अभी हमारा भी एक बड़ा जो है अच्छा एक बैलेंस्ड वफद जा रहा है, और दुनिया के कैपिटल्स में जो अहम तरीन है, बेशक लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स, इन सारी जगहों पे, फिर साथ ही साथ वज़ीर आज़म का ये दौरा। अब जो वज़ीर आज़म का दौरा है वो इसलिए एक खसूसी अहमियत का हामिल है कि वो जिन मुल्कों में जा रहे हैं इस वक्त, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इनमें से बहुत से मुल्कों, मिसाल के तुर्किया, यू नो, अब देखिए उनका तो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ एक ऑलमोस्ट डिप्लोमेटिक जो उनसा ना वो एक इरिटेंस बन गए हैं, एक बॉयकॉट तक की बात चली गई है। और अज़रबैजान के साथ भी यही हालत है, क्योंकि वहाँ पे तो आपने देखा इन दोनों मुल्कों में अवाम ने सड़कों पे पाकिस्तान का जो है ना पाकिस्तान के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस तक की उन्होंने, उनकी हुकूमतों की तरफ से भी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई वो भी बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी। अच्छा, फिर उसके बाद जो तीसरा मुल्क है ईरान, उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा दोनों मुल्कों में भेजा, कोशिश की कि जी ये रुक जाए, जो है ना हो। जब खैर हिंदुस्तान जो है मैंने अपने ये कमेंट्स में कहा था कि वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते थे पाकिस्तान की डिटरेंस जो उन्होंने टेस्ट की, और वो फिर उसका उनको नुकसान भी हुआ। लेकिन ईरान ने भी कोशिश तो की, और फिर बाद में ईरान के भी ताल्लुकात उनके साथ आप देखें किस तरह मीम्स बनी हिंदुस्तान में, उनके वज़ीर ख़ारजा पे किस तरह के बयानात वहाँ से आए सारे। अब जो चौथा मुल्क है ताजिकिस्तान, तो ताजिकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर ही हो रही है। अब ये सारे जो दरिया निकलते हैं ये इस खत्ते में जो आते हैं, ये सारे दरिया ग्लेशियर से ही शुरू होते हैं, तो इसलिए ग्लेशियर्स बहुत अहम है, क्योंकि ये मुश्तरका एहसासा है इस सारे खत्ते का, और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी, बिकॉज हिंदुस्तान जिस तरह के एक्शंस ले रहा है जो कि सिर्फ ये नहीं कि इश्तियाल अंगेज़ हैं, सिर्फ वो बहुत ख़तरनाक हैं, इसलिए कि पानी जो है, पानी तो ज़िंदगी है, पानी तो जो है ना इक्तिसादियात के लिए, पानी आपकी ज़राअत के लिए, आपकी यू नो आपके मिलियंस जो है करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के लिए वो इतना अहम है। तो अगर उन्होंने इसको वेपनाइज कर लिया तो वो तो इस खत्ते में फिर एक नया एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है। तो इसलिए आई थिंक कि वज़ीर-ए-आज़म का जो दौरा है और ये जो बाकी जो वफद जा रहे हैं, उन्होंने दुनिया को यही बताना है कि देखें हम तो पाकिस्तान ने तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर बिहेव किया है, लेकिन हिंदुस्तान जो है एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है इस वक्त, एक ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं जो है। और जो असल मसला है वो तो सबको मालूम है, असल मसला तो तनाज़ा जम्मू कश्मीर है। अच्छा, उस पर पाकिस्तान ने देखें जब ट्रम्प की ट्वीट आई थी तो उसमें वाज़ेह था कि जी ये सीज़फायर होगा, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे मुज़ाकरात होंगे, और उसमें ये जो तनाज़ात हैं इनके वो उस पर बात होगी। अच्छा, और हमारा नुक्ता नज़र ये था कि जब भी बात हो तो बामकसद हो, यानी मीनिंगफुल डायलॉग हो, ये नहीं कि सिर्फ जो है ना निश्तनंद गुफ्तनंद और बर्खास्तनंद वाली बात ना हो, और एक कॉम्प्रिहेंसिव वो सारे इश्यूज, कश्मीर भी हो, पानी के मसाइल भी हों, सियाचिन भी हो, जो है ना सर क्रीक भी हो, बस ये सारे जितने भी मसाइल हैं, फिर अच्छे पॉजिटिव साइड पे भी हम जा सकते हैं। अगर ये मसाइल को हल करें तो फिर ट्रेड की तरफ भी जा सकते हैं, बाकी चीज़ों की तरफ भी, कनेक्टिविटी की भी तरफ भी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन हिंदुस्तान ने, और ये भी मुझे खदशा था और मैं कह चुका था अपने कमेंट्स में कितनी बार कि मुझे ये खदशा है कि हिंदुस्तान जो है ना वो कोशिश करेगा कि रिगल आउट करे इस अंडरस्टैंडिंग से, और वही लग रहा है। इम्कान बहुत साफ है। अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है मोदी ने कल परसों कि जी ना कोई ट्रेड होगी, ना कोई टॉक्स होंगी जब तक कि ये पाकिस्तान जो वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात हम कर रहे थे कि दुनिया की जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो इंटरस्टेट रिलेशंस हैं, वो इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मोरालिटी के ऊपर या प्रिंसिपल्स के ऊपर या इवन यूएन चार्टर में जो सारा कुछ है उस पर नहीं चलते। असल जो है वो सारी ज़रा रियलिज्म की थ्योरी सारी ये है, लेकिन फिर भी अपना मौक़िफ़ जो है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है और उसका एक वेट होता है। राइट, अज़हर साहब के पास जाऊंगी। आप साहब मुल्क से बाहर हैं, यू सिटिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इस वक्त बरतानिया में, उसको किस तरह जो है वो देखा जा रहा है पाकिस्तान की इस वक्त, क्योंकि और बिलखुसूस मैं आपसे ये चाहूँगी कि अगर एक कंपैरिजन आप ड्रॉ करें माजी के, अगर मुकाबला करें तो हाउ इज़ इट बीइंग सीन टुडे?
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त दुनिया पाकिस्तान को सुन रही है। बिल्कुल इस बात में बड़ी हकीकत है कि आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और इंटरेस्ट होता है जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिकल सिचुएशन है, लोकेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को अगर आप देखें, वो जिस खित्ते के जिस हिस्से में वो वाक़या है, वहाँ पर तो इंटरनेशनल कुव्वतों का ऑलरेडी इंटरेस्ट रहा है, यूएसए का इंटरेस्ट रहा है, ब्रिटेन का इंटरेस्ट रहा है, और ये सारे पाकिस्तान को वैल्यू करते हैं। यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इससे कबल हमने पाकिस्तान पे प्रेशर देखा। मैं तकरीबन 20 साल से हूँ यहाँ पे, और मैंने हमेशा पाकिस्तान को अंडर प्रेशर ही देखा। दीगर मामलात में जब भी हमारी बात होती थी यहाँ पे फॉरेन ऑफिस के लोगों से, यहाँ के डिफरेंट थिंक टैंक्स के लोगों से, तो वो एक झुकाव उनका इंडिया की तरफ नजर आता था। उसकी एक वजह और भी थी कि इंडिया ने बड़े एक गैर महसूस तरीके से अपने लोग इन जो थिंक टैंक्स हैं और ये जो अहम फैसला साजी के मराकज़ हैं वहाँ पे बिठा रखे हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क क्या हुआ? इस दफ़ा फ़र्क ये हुआ कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले ऑफ़र की कि जी हम तहकीकात करने में ताउन के लिए तैयार हैं, कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री आके हमें करे तो हम उस पर ताउन करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की अगर आपको ये तकरीर एक याद हो जो काकूल एकेडमी में हुई थी, बड़ी उन्होंने डिटेल के साथ ऑफर की थी। फिर उसकी बाद उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई थी बरतानवी हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के लिए, जैन मेरियट, वो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में मिली थी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की थी ब्रिटेन को भी कि आप अपना रोल अदा कर लें और आप एक गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए अगर आप आते हैं तो हम ताउन के तैयार हैं। उसके बाद ब्रिटेन हैज प्लेड वेरी पिवटल रोल, ये सीज फायर में भी जो है वो शायद सामने उस तरह नहीं आ रहा, बट दे प्लेड वेरी पिवटल रोल इन दिस एज वेल। जी बिल्कुल, और आप देखें कि सबसे पहले उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, वो पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं इस सारे मामले में। तो इस सारे मामले में आप देखें ये जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तकरीबन 70 ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा हैं या उनके नुमाइंदों के साथ फ़ोन पे बात की, उनको अपना मौक़िफ़ समझाया। इसके अलावा मैं पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि जो हमारे कैपिटल यहाँ पे हाई कमीशंस हैं, एम्बेसीज हैं, उनका बड़ा एक अग्रेसिव और पॉजिटिव रोल रहा। यूएसए में देखें, यूनाइटेड नेशंस में देखें, यहाँ लंदन में देखें, ब्रसल्स में देखें, फ्रांस में देखें, जो ये कैपिटल्स मैटर करते हैं, वहाँ पे एक बड़ी एक्सटेंसिव जो है वो हुई है डिप्लोमेसी। इसके बाद मीडिया पे देखें, मीडिया पे आपके हमारे जो डीजी आईएसपीआर हैं अहमद शरीफ, वो कंटिन्यूसली आए हैं इंटरनेशनल मीडिया पे, स्काई हो, बीबीसी हो, आईटीवी हो या फ्रेंच टीवी हो, अल जजीरा हो, उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझाया। इसके बाद वज़ीर इत्तलात जो हैं वो बड़े रेगुलरली आते रहे, और इस दफ़ा लोगों को यहाँ के जो फैसला साज हैं या जो लोग मैटर करते हैं, उनको पाकिस्तान की बात समझ आई है, वो पाकिस्तान को सुन रहे हैं। आप देखें जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ, स्वाय इजराइल के कोई भी कंट्री जो है वो भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, और हमारे साथ जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो खड़े हुए, और जो दूसरे लोग थे वो न्यूट्रल हुए। अमेरिका के सदर ने तो अमलन हमारा जो अपना वजन है वो हमारे पलड़े में डाल दिया, और इवन वो भारत के साथ जो उनकी लैंग्वेज जा रही है कि ट्रेड के लिए, इवन अभी उन्होंने एप्पल के जो सीईओ उनको भी कहा कि अपनी जो आप जो उधर बना रहे हैं उसको वापस लाएं। तो इस वक्त एक बड़ी अच्छी और बड़ी बेटर पोजीशन में है पाकिस्तान। अभी जो उनका 7 ममालिक में उनका जो 7 वफूद गए हैं डिफरेंट ममालिक में इंडिया के, उनका घर पे ही विद इन इंडिया उन पे बैकलैश आ रहा है, उनकी वो असर नहीं आ रहा। शशि थरूर साहब बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे, लेकिन उनके पास अभी समझाने के लिए वर्ल्ड को नहीं है। मैंने उनकी 1-2 स्पीचेस सुनी है, लेकिन वो उस तरह कन्विंस नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत अच्छा इंतखाब है, उनकी एक लेगेसी है, उनको यहाँ पे लोग जानते हैं, अमेरिका में जानते हैं, बरतानिया में जानते हैं। उनके जो वो नाना थे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा, उनकी वालदा बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। लेट मी जस्ट इंक्लूड जनरल साहब इन दिस डिस्कशन। जनरल साहब, अभी जो जितनी बातें अभी अज़ीज़ साहब ने की हैं, एक पजीराई बिल्कुल मिल रही है, बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह हम पहले कह रहे थे, इकोनॉमिक टाइज अपनी जगह, उसके अलावा वेस्ट के जो हेजेमोनिक डिज़ाइंस हैं वीज़ा वी ये खित्ता जो है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि हमारी जो मौक़िफ़ है, चलें उसको पजीराई तो मिल जाएगी, लेकिन अमलन उस पर कुछ होगा? एंड लाइक वी वर सेइंग कि बिलखसूस जो कश्मीर वाला इशू है, क्योंकि अंडरलाइंग इशू तो हमारा वही है, वही हमारा अंडरलाइंग इशू है, क्या उस पर कुछ हो सकेगा?
देखिए हमारी, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट, मैंने दोनों जो हमारे गेस्ट हैं इनकी बातें सुनी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी पॉजिटिव, दैट इज व्हाट वी होप। लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज और जो एक्चुअल जहाँ पे काम हो रहे हैं वहाँ पे सोच मुख्तलिफ हो। नंबर एक, व्हेन वी टॉक ऑफ अमेरिका, हम भूल जाते हैं कि अमेरिका के भारत के साथ 4 बड़े मेजर मुआहदात हैं, एग्रीमेंट्स हैं। वो एग्रीमेंट्स अगर आप पढ़ें और उनको आप मिला के पढ़ें तो इंडिया इज देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन एवरी रिस्पेक्ट जो आप सोच सकते हैं। तो क्या आपका ख्याल है कि ट्रम्प साहब और ओबामा साहब ने जब मिलकर ये काम किया था तो इसलिए किया था कि वो इंडिया को अलग छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे यहाँ पे इंडिया? मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हमें नजर नहीं छुड़ानी चाहिए। नंबर 2, इंडिया की जो रियलिटी है हमें इंतहाई नापसंद है, मोदी साहब नापसंद है, उनकी केस सब कुछ। मेरा इशू ये है कि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है, आज से नहीं है, ये 2005-2006 से हमारे पास स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन क्या वजह है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू पुट अक्रॉस द वर्ल्ड? एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब हम केस लेके जाते हैं हमारा सारा थ्योरेटिकल और रिटोरिकल होता है, उसमें जो ऐसा केस जो लीगल स्क्रूटनी को स्टैंड कर सके, यानी कानूनी तौर पर जो बिल्कुल मजबूत केस हो, जिसमें शायद वो सब कुछ हो, वो मिला के अगर आप किसी भी एक केस को लेके पेश करेंगे तो वो दुनिया तब आपकी बात सुनेगी। अब ये ठीक है सो जो कुछ हुआ सारा कुछ है, आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान है, मैं बड़ा खुश है, अल्लाह ताला का शुक्र। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, प्लीज लुक इनटू इट कि क्यों, क्या वजह है कि दहशतगर्दी का शिकार भी हम हैं, और आज से नहीं है, 2000 कब से हो रहे हैं हमारे साथ, नुकसान भी हमारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारा, तो हमारा कसूर भी हमारा ठहराया जाता है। ये क्या वजह है कि हम अपना केस दुनिया के सामने क्यों पेश नहीं कर सके? इसलिए नहीं पेश कर सके। नंबर 1, वी हैव फेल्ड समवेयर, वी मस्ट आइडेंटिफाई कोई जो हमारी जो वीकनेस है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो केस प्रिपरेशन है मैंने आपसे बता दिया। नंबर 3, क्या हमारी आवाज वाकई दुनिया सुन रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडिया ओनली। आप देखिए कि इंडिया के इतने इंग्लिश चैनल्स हैं, वो शायद दुनिया सुन सकती है। हमारे चैनल्स पे जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ उर्दू स्पीकिंग दुनिया ही सुन सकती है, इससे आगे बात जाती नहीं। अब जब ये 6 या 7 तारीख से जब ये मसला बना है तो फिर कुछ हमारे लोगों ने मिला के इंटरनेशनल मीडिया पे हमने अपना केस पेश किया, सारा कुछ बहुत अच्छा पेश किया। लेकिन दिस हैज टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट, ये एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू कंटिन्यूअसली प्रेस फॉर इट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? अगर ये कश्मीर का मसला इस वक्त हम हल करने में नाकाम रहे और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को ना समझाया तो फिर पाकिस्तान को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमें मोदी साहब का भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने लगातार पाकिस्तान को मौके दिए, पहली दफा नहीं है ये। फेलगम इज प्रॉब्ली द लेटेस्ट इन द सीरीज। इससे अब ये चल गया, पुलवामा था आपके पास, पठानकोट था आपके पास, सब इंसिडेंट थे आपके पास। हमने क्यों उनको लेकर दुनिया के सामने नहीं गया? हमने क्यों नहीं बताया कि हम तो शो मचाते रहे, क्या दुनिया को हमारी जो एज ए कंट्री भी हम पेश कर सके हमारे कि भाई कश्मीर इज दैट फ्लैश पॉइंट व्हिच इज ब्रॉट द टू न्यूक्लियर कंट्रीज टू ब्रिंग नॉट वंस बट मेनी टाइम्स। और ये सिर्फ 2 न्यूक्लियर कंट्रीज यहाँ मौजूद नहीं है। If I may interject, इस दफा तो मेरा ख्याल है, as I've been saying, it's perhaps a wake-up call for the world as well, because जहां आप भारत को एक बहुत बड़ी मंडी के तौर पे बिल्कुल है और इसमें कोई आप उसको झुटला नहीं सकते, बट एक अगर ऐसे जगह पर जहां जंग का खतरा जो है वो रहेगा तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी आएगी वो भी सोचेंगे ज़रूर। जैसे कि अभी सऊदीया की जो है वो स्टॉल हो गई है फॉर सम टाइम, गॉड नोस कितनी देर के लिए हुई है, स्टॉल हुई है। सो that's again a wake up call, I would say, for the world as well. देखिए वेकअप कॉल तो ये पहले मैं कह रहा हूँ पहली दफा नहीं आया। कैन वी मेक इट लाउड एनफ कि दुनिया खड़ी हो जाए? दैट इज नाउ पाकिस्तान एफर्ट। पाकिस्तान उधर डायरेक्ट पाकिस्तान की एफर्ट होनी चाहिए उस तरह कि दुनिया खड़ी हो जाए कि ये आप न्यूक्लियर वार से होते होते बचे हैं। लेकिन हमें जो एक मेरे लिए बड़ा सीरियस इशू ये है, हमें चाहे हमारे लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और दूसरे हों, हम फौरन कहते हैं ये कि हम न्यूक्लियर बम मार देंगे, तो ये तरीका तो है ही नहीं है बात पेश करने का। पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल सिस्टम है वो अल्लाह के फजल से साबित हो गया बेहतरीन है। न्यूक्लियर बॉम्ब, एवरीबॉडी नोज वी हैव a nuclear bomb. Everybody knows that for us this is the matter of survival, and if push comes to shove we'll use it. That is not something that we can जो हम लेके दुनिया को बार बार ही बताते हैं। दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के खतरात बढ़ रहे हैं, अगर भारत को ना रोका गया और ये मोदी साहब की सरकार यूं चलती रही तो फिर बात यहाँ से आगे नहीं होगी। जहाँ पर अब रुकी है, इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा इससे आगे होगा।
کیونکہ یہاں تک تو کر کے دیکھ لیا مودی صاحب ناکام رہے, نیکسٹ اسٹیج پہ اسے کچھ آگے لے کے جائیں. صاحب I'll come to you. ابھی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ہم ڈوسیئر بھی پریزنٹ کر رہے ہیں, now this is not the first time we'll be presenting a dossier. اس سے پہلے بھی ہم نے ویسٹ میں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈوسیئرز پریزنٹ کیے, امریکہ کو دیے ہیں. we've been talking about these things. As a diplomat, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where is our case, how is our case weakened? ہم اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس فیکٹس نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈوسیئرز ہوتے ہوئے جن میں کانکریٹ ایویڈنس ہے ہم اپنا موقف نہیں دنیا کو بتا سکتے؟ میں تھوڑا سا اس کو مختلف انداز میں دیکھتا ہوں. پاکستان نے ڈوزیئرز پہلے بھی دیے ہیں. میں باہر سفیر تھا اس وقت جرمنی میں اور پھر اٹلی میں, تو وہاں پہ اس وقت ہمیں جب ڈوزیئرز ملتے تھے تو ہم وہاں پہ اعلیٰ ترین سطح پہ ان کو دیتے تھے. پھر دیکھیں میڈیا میں بھی ایک کیمپین چلی 2019 کے بعد. میرے خیال ہے پچھلے 30 سال میں نے کبھی اتنی زیادہ نہیں دیکھا کہ یہ کشمیر ڈسپیوٹ پہ, جموں کشمیر ڈسپیوٹ پہ جتنے آرٹیکلز آئے, جتنی اس پہ خبریں آئیں, بیکاز وہاں پہ جو اس وقت انہوں نے سارا کرفیو کر دیا, بالکل مواصلات بھی جام کر دی, ہر چیز, انٹرنیٹ بند کر دیا, ہزاروں لوگوں کو جیل میں ڈال. تو اس کا ورلڈ میڈیا نے نوٹس لیا, بالکل ان حکومتوں نے بھی اس پہ نوٹس لیا. اور وہ ملک بھی جہاں پہ اسٹیٹمنٹس نہیں آتی تھی انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹس بھی دیں. جس سمے جرمنی میں تھا تو چانسلر مرکل نے ہندوستان میں جا کے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر پہ, جس پہ وہ بڑے حیران بھی ہوئے. اسی طرح ان کے فارن منسٹر نے تو ایک بار کہہ دیا, جرمن فارن منسٹر نے, کہ یہ مسئلہ جو ہے ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور یہ جو ہے اس کے مطابق ہی حل ہونا چاہیے, جو کہ اب بہت زیادہ مختلف تھا اس سے جو کہ انہوں نے بہت سالوں سے بہت سی طاقتوں سے منوا لیا تھا, جو کہتے تھے صرف کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہے اور آپس میں بات چیت سے بس حل کریں, اس کو انٹرنیشنلائز نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے, دیکھیں ایک تو آپ نے اقتصادیات کی بات کی, وہ ایک پہلو ہے, لیکن جو دوسرا اس سے بھی زیادہ اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پوری انڈو پیسفک اسٹریٹجی ایک بن رہی تھی, چائنا کی ایک رائزنگ پاور, اس کو جو ہے نا رائزنگ, جس کو وہ ایک ایمرجنگ سپر پاور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے مقابلے پہ آئے, کمپیٹیٹر بنے. ان کو کوئی بھی نہیں چاہتا. یہ جو بھی ایک سپر پاور ہوتی ہے وہ یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے. اس پہ ایک پوری ایک تھیوری ہے تھوسیڈیڈس ٹریپ جو ان سی ہے نا, تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہے, انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی جو کہ کوئی ایسی سیکرٹ چیز تو نہیں ہے, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی جس پہ یہ ہے کہ کاؤنٹر ویٹ جو ہے چائنا کا وہ انڈیا بنے گا, اور انڈیا وہ بیلنس کرے گا اس طرح سے کہ چائنا پھر وہ جو ہے نا اس کا رائز جو ہے اس کو روکا جا سکے. تو اب جب انڈیا کا اس میں اتنا زیادہ اہم رول ہے پورے ویسٹ کی, اور یہ صرف امریکہ نہیں ہے, اس میں پورا اس میں شامل ہے. Exactly why I said ویسٹ کی جو ہیجمونک ڈیزائنز ہے vis-a-vis انڈیا. مطلب ہم ان کو ہیجمونک نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ جو ویسٹ کا جو ویسٹ کی اسٹریٹجی ہے چائنا کے رائز کو روکنے کی, تو اس میں انڈیا کا کردار اتنا اہم ہے. وہ بے شک کواد ہو یا جتنے بھی اور بھی اس میں کتنے زیادہ انہوں نے میکنزمز بنائے ہیں. ابھی دیکھیں جب مودی امریکہ گئے تو اس وقت جو ہے انہوں نے ایسی ٹیکنالوجیز امریکہ نے ان کو دینے کا اعلان کیا, اور ایسے نئے میکنزمز اناؤنس کیے جو کہ اس سے پہلے انہوں نے بہت کم ملکوں کے ساتھ کیے تھے. تو دیکھیں وہ ساری ہے, بلکہ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے, اور جنرل صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اس پہ غور کریں ذرا, کہ ان ساری چیزوں کے باوجود اگر انہوں نے آؤٹ رائٹلی انڈیا کو سپورٹ نہیں کیا اس کانفلکٹ میں, اور انہوں نے ایک بائسڈ قسم کا ویو پوائنٹ نہیں لے کے آئے, اور ایک جو ہے نا ایک تھوڑا نیوٹرل جو ہے نا طریقے سے بیہیو کیا, اور انڈیا کو تھوڑا پش کیا کہ سیز فائر کی طرف آئیں, تو وہ بھی ہماری ایک بڑی کامیابی ہے. بٹ وونٹ یو اگری کہ وہ جو پش کیا ہے وہ پش بھی تب کیا جس وقت انڈیا کو, جب یہ ہماری طرف سے جو آفینس تھا یا جواب تھا وہ شروع ہو گیا, ہم نے جو ڈیفینس میں اپنے جواب دینا شروع کیا, اس سے پہلے تو جے ڈی وینس کا وہ ایوری ون ہیز سین دیٹ انٹرویو ان وچ ہی سیز دس از ناٹ اے کنسرن, دس از ناٹ اے پرابلم. دیکھیں جس وقت جے ڈی وینس نے یہ کہا تو اس وقت بھی ان کی سفارتکاری ساری چل رہی تھی. صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو ایک پازیٹیو رزلٹ کی امید نہ ہو آپ یہ رسک نہیں لینا چاہتے یہ کہنے کا کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں. تو انوالو تو اس سے پہلے بھی تھے, لیکن ظاہر ہے پاکستان نے جس قسم کا ایک ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس دیا, اس نے ان کی سفارتکاری کے ہاتھ بہت مضبوط کر دیے ان سارے ملکوں کے جو کہ اس وقت سیز فائر کی طرف جانا چاہ رہے تھے. اگر وہ پاکستان نہ کرتا تو پھر ہندوستان ان کی بات نہ سنتا اس وقت, تو پاکستان نے, ہم نے بہت زیادہ ان کو اس وقت ایک وہ مضبوط وہ دے دیا پلانک سفارتکاری کے لیے, جو کامیاب بھی ہوئی بالکل. کیونکہ دیکھیں سفارتکاری بھی جو چیز ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں آپ کی پرفارمنس پہ چلتی ہے, اگر وہ پرفارمنس بہت ہی ویک ہو تو پھر تو نہیں چلتی. تو دیکھیں ہمیں میرا خیال اس پورے تناظر کو ذہن میں رکھنا ہوگا,
اور اسی لیے ہمیں اب جو اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں, جو ہماری امیدیں بھی ہیں, ہمیں ان کو بھی تھوڑا سا مینیج کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں ریئلسٹک, دیکھیں نا جس نے جنرل صاحب نے کہا کہ دنیا اٹھ کھڑی ہو ہمارے لیے, دیکھیں دنیا اٹھ کھڑی ہو فلسطین میں جو ہو رہا ہے, آپ غزہ میں دیکھیں تو اس میں مطلب بہت سی کوشش کی انہوں نے, ہر جگہ پورے ملکوں کی اسٹیٹمنٹس بھی آئیں, اقوام متحدہ میں, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی ریزولوشنز ہوئے. ہاں ضرور, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بھی رکھ مشکل پر حاوی ہیں, ہم ہر مشکل پر حاوی ہیں. اللہ کی نصرت ساتھ رہے, اللہ کی نصرت ساتھ رہے. ہم 10-20 پر بھاری ہیں, ہم سے نہ الجھنا اے دشمن, ہم خاک اڑا دیں گے تیری, ہم خاک اڑا دیں گے تیری. بنیانم مرصوص صدی, ہم بنیانم مرصوص, طاقت ہے ایمان ہماری, ہم سب سے مقصود. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. درست ہر وقت بار وقت. عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں, خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں. وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے, وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے, وہ مائیں فخر کرتی ہیں. سلام افواج پاکستان. درست ہر وقت بار وقت. کشمیری عوام کو حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے قابض بھارتی افواج نے تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. قابض بھارتی افواج بڑے پیمانے پر کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر رہی ہیں. حریت رہنماؤں, انسانی حقوق کے کارکنوں اور عام شہریوں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے. مقبوضہ خطے میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں مودی حکومت کی بوکھلاہٹ کا منہ بولتا ثبوت ہیں. تمام تر بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری عوام اپنی منزل الحاق پاکستان کی جانب رواں دواں ہیں. کیا آپ غیر معیاری تصویر, آواز اور سگنل سے پریشان ہیں؟ ان تمام مسائل کے حل کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن لا رہا ہے ڈیجیٹل باکس, جہاں آپ دیکھ سکیں گے اپنے پسندیدہ چینلز, پی ٹی وی ہوم, نیوز, سپورٹس, ورلڈ, بولان اور پی ٹی وی نیشنل. HD تصویر, صاف آواز, نہ کیبل کا جھنجھٹ, نہ کسی اور خرچے کی فکر. آج ہی 051-920
6813 पर कॉल करें और हासिल करें अपना मुफ्त पीटीवी डिजिटल बॉक्स, या अपने करीबी पीटीवी इस्लामाबाद, लाहौर या पिशावर सेंटर से राब्ता करें। पीटीवी डिजिटल बॉक्स, हर तस्वीर, हर आवाज, हर लम्हा आपके साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त अज़र साहब की तरफ जाऊंगी। अज़र साहब, इस वक्त जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे हमने बात पहले भी की कि कॉन्फ्लिक्ट में सुबकी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सुबकी, अंदरूनी महाज पर मोदी सरकार को जो है वो सुबकी हो रही है इंडिया के अंदर। तो इस वक्त ये खदशा बहुत हद तक जो है वो मौजूद है, और यहाँ पे मेरा ख्याल है जो ये डिप्लोमेटिक विजिट्स भी जो हो रही हैं, इनमें भी एक जो जुज़ है वो ये है कि दुनिया को ये बावर कराना कि भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। इसी तनाजुर में जो पिछले हफ्ते जो विजिट था डेविड लैमी का, उसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई, उसमें बाकायदा कहा गया था, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी टू विजिट पाकिस्तान सिंस 2021 एज यूके पुशेस फॉर फ्रैजाइल सीज फायर टू बिकम ड्यूरेबल पीस। आपको क्या लगता है कि अभी बरतानिया में ये खदशा बाकी है, या जो ये विजिट हुआ है उसके बाद ये ख़त्म हो गया है? जो पिछले हफ्ते का विजिट था उसके बाद वो भारत भी गए थे। देखिए जी, खदशा बहरहाल बाकी है, क्योंकि भारत एक ऐसा मुल्क है जो रवायती तौर पे फितरतन वो पाकिस्तान को कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और हमेशा से वो इस आड़ में रहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करें। और अभी जो उनको जो सुबकी हुई है उसका बदला लेने के लिए जो पॉलिटिकली इंटरनल जो इश्यूज आ रहे हैं मोदी को, वो उसको ओवरकम करने के लिए एक और महदूद जंग छेड़ता है। अगर आप देखें बयानात जो उनके अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो बड़े वोकल है, उन्होंने इवन क्वेश्चन किया है। अगर उनकी आप मुख्तलिफ एक्स पे पोस्ट भी देखें, उनके जो बयानात भी देखें कि रफाल जेट्स बताएं वो कितने गिरे हैं, और दूसरी चीज़ों पे भी। तो मोदी एक जिस इंतहा पसंदाना नज़रिए का हामी शख्स है, और उसकी जो जमात है आरएसएस और शिवसेना और बीजेपी का जो मंशूर है, वो हिटलर से मिलता जुलता है। वो इसमें किसी भी वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, और उसका मिस एडवेंचर दोबारा हो सकता है। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बरतानिया की हुकूमत हो या अमेरिका की हुकूमत हो या यूरोपियन यूनियन में जो ब्रसल्स है, जहाँ पे 27-28 ममालिक बैठते हैं, इस वक्त ये सोच है कि भारत जो है इस दफ़ा उसने अपनी जो डोमेन है उससे स्टेप आउट किया है। दुनिया में कहीं भी किसी मुल्क के अंदर जाकर अटैक करना उसकी सालमियत के खिलाफ, उसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ अच्छा नहीं समझा जाता, चाहे वजूहात कुछ भी हों। भारत ने इस दफ़ा वो रेड लाइन क्रॉस की है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लाहौर के करीब मुरीदके में, बहावलपुर में और मुख्तलिफ जगहों पे जो अटैक किए, हमारे बेसिस पे अटैक किए, तो वो एक भारत की पोजीशन उस पर इंटरनेशनली भी डाउन हुई है। इस वक्त दुनिया के साथ हमारी डिप्लोमेसी, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, गुज़िश्ता 20 साल में जो मैं लंदन में यहाँ पोस्टेड हूँ, उसके बाद से मुझे पहली दफ़ा ये महसूस हुआ कि दुनिया हमारी बात सुन रही है। और उसकी वजह भारत की अपनी भी हमाकत है, अपनी भी उनके जो एक इंटरनल इश्यूज को लेके इस दफ़ा फिर वो समझ रहे थे कि इंतखाबात के लिए ये चीज़ यूज़ की जा सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान की फोर्सेस की बहादुरी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसका चर्चा है। पाकिस्तान ने जो जेट गिराए हैं, रफाल जेट, उसकी वजह से भारत जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी जो ये असला साज इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़े खतरात हैं। इसको लेके अब चाइना की सुप्रीमेसी की बात हो रही है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, तो इस वक्त वेस्ट नहीं चाहता कि कोई और कन्फ्लिक्ट हो। और दूसरी बात कि सुपर पावर अमेरिका है, और अमेरिका के सदर 3 बार कम अज कम पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के पॉजिटिव रवैये की तारीफ कर चुके हैं। मुआशी मुफादात जो मर्जी हो, लेकिन इसी मुआशी मुफादात में हमने देखा है कि भारत पर जो टैक्स लगाना है, जो ट्रेड टैरिफ है, उस पर उन्होंने उनके खिलाफ बात की है भारत के। आप ये देखें कि जो एप्पल डिवाइसेस बन रही हैं इंडिया में, उस पर वो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए क्या है? एक तो मैं समझता हूँ कि उनका जो डेलीगेशन है वो लेट हो गया, उन्हें पिछले वीक आ जाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। इस वक्त इंडिया का डेलीगेशन 7 डेलीगेशन डिफरेंट कंट्रीज में मौजूद है। आपको अपनी बात करनी है, रखनी है, और यहाँ पे इसके अलावा जो 4-5 कंट्रीज हैं और जगहों पे जाने की ज़रूरत भी है। बिलावल भुट्टो साहब बहुत अच्छी चॉइस है।
लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो 4 ममालिक में गए हैं, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और वजीर खारजा हैं, उनको भी निकलना चाहिए, वो भी बात करें, दुनिया में आए, अपना मौक़िफ़ समझाएं। और इस मौका पर अगर मैं एक और बात बड़ी ज़रूरी करूं, आज से तकरीबन 2 से 3 महीने पहले आर्मी चीफ यहाँ लंदन आए थे, और लंदन में जो उनको यहाँ पे पजीराई मिली, यहाँ पे रॉयल हार्स ग्राउंड जो है, वहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिएगा। बहुत कम आर्मी चीफ्स को ये एजाज़ हासिल होता है। तो पाकिस्तान का ऑलरेडी जो ये बरतानिया के साथ एक ताउन है, वो फौजी सतह पे भी उसमें बहुत बेहतरी आई है पिछले चंद सालों के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन पे है, लेकिन फिर वही बात, इंडिया मिस एडवेंचर कर सकता है, और हमें उस पे मेरा ख्याल है हमारा अपनी फोर्सेस पे मुकम्मल यकीन है, चाहे वो हमारी ग्राउंड फोर्सेस हो या एयर फोर्सेस हो या नेवल, कि हम उनको एक बार फिर भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। जनरल साहब, आर्म्ड फोर्सेस तो रेडी हैं, उन्होंने दिखाया भी है कि उन्होंने जिस वक्त अटैक हुआ तो कैसे उन्होंने उसको जो है वो फिर सिर्फ जो है वो जवाब नहीं दिया और बहुत तगड़ा जवाब दिया। दैट इज़ ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। हैविंग सेड दैट, इस वक्त एक जो हमारा अंदरूनी मसला है वो भी चल रहा है, जिस पर हमें एक ऐसा टाइम है वेयर पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके इश्यूज चल रहे हैं, और वो आए दिन कभी धरना होता है, कभी कुछ होता है। पिछले कुछ हफ्तों से वो चीज़ जो है वो ख़त्म हुई हुई है, बट अगेन वो फिर से सर उठा रही है। आप किस तरह देखते हैं जो हमारा पॉलिटिकल इशू है इस वक्त, उसको जो पॉलिटिकल कंसेंसस का, पॉलिटिकल यूनिटी का जो इस वक्त बहुत दरकार है, वो किस तरह सॉर्ट आउट होना चाहिए, वो कैसे टैकल होना चाहिए? देखिए, ये दोनों गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात की। आई वांट टू लीव दैट एंड आई वांट कि भी पाकिस्तान की बात सुनी जाए, पाकिस्तान के मसाइल हल हों। वी कमिंग डाउन टू होप फ्रेंड। देखिए जी, एक तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिज्म की जो वेव नई शुरू होने का खतरा है मुझे, क्योंकि भारत ने जो सुप्री उठाई है उसका वो बदला किसी और तरीके से भी ले सकता है, और फिर इसको स्ट्रेटेजिकली कहीं वो अपने उसमें डबटेल कर सकता है जो उनके प्लान है। वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हमारे हर लेवल पे। दूसरा, देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री इज बेसिक फॉर एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम जो भी यहाँ बात कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर जो भी बाहर जा रहे हैं, वो एक बेसिक प्रीमाइस पे जा रहे हैं कि उस पर द नेशन स्टैंड्स टुगेदर, और नेशन स्टैंड्स टुगेदर बिकॉज अभी दुनिया ने ये 40-50 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने जंग अपने घर में आते हुए देखी है, इसलिए कोई शक नहीं रह गया कि जो आर्म फोर्स का क्रिटिसिज्म था वो गलत था, और उनकी लीडरशिप का क्रिटिसिज्म था वो गलत था। तो लोग अब इस बात को समझना शुरू हो गए। इसको मेरा ख्याल, दिस शुड बी एन ओपनिंग फॉर अ पॉलिटिकल लीडरशिप। और मेरा अपना ख्याल पहले से ही था कि भाई जो हमारे सियासी क़यादत है, बड़े मंचे हुए सियासतदान हैं सारे, जिस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, दूसरे लोग, तो ये दे विल रीच आउट और एक ओपनिंग देंगे ताकि ये जो रोजों की चकचक है इससे बाहर निकलें। सियासी खिलाफात अपनी जगह रहें, वो अलग बात है, वो जो क्राइम्स हैं उनकी भी सजा मिलती रहे, वो दैट इज नोबडी। कोई ये चाहेगा कि भाई आपने जुर्म भी किया और आपको छोड़ दी जाए जाए, लेकिन उसके अलावा जो सियासी जो टेम्परेचर है ना, जो अभी मोदी साहब और सब कुछ वजह से ऐलान किया एक लेवल पे आ गया है, अब इसको यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए वी नीड पीपल विद विजन, वी नीड पीपल who can rise above themselves, जो पॉलिटिकल जो छोटे-छोटे मफादा उनसे बाहर निकलने की बात करें। एंड आई एम श्योर कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये बात समझ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ, एंड दे आर, आई थिंक सब पाकिस्तानी है, सबको पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं ही नहीं समझता कि पाकिस्तान से मोहब्बत के अलावा किसी के पास कोई और ऑप्शन है। इसलिए मैं समझता हूँ नाउ इज द टाइम कि भाई इसको भी हम इस मसले को भी हल कर लें, क्योंकि देन वी हैव अ वेरी टफ बैटल जो अपनी इकोनॉमी को हमने ठीक करना है, वो किसी एक पार्टी या किसी एक आदमी के बस में नहीं है। दिस हैज द एंटायर नेशन हैज टू पुट इट्स फुट ऑन द व्हील, तभी जाके हमारी इकोनॉमी चलना शुरू होगी। इसको भी जब जाते हैं तो पीपल आर इन ट्रबल जो जा रहे हैं। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी है या इकोनॉमी है, उससे ऊपर की कोई और चीज़ होनी नहीं चाहिए, और उस पर मेरा ख्याल है जो भी पार्टी इन पावर आती है उस पर एक कंसेंसस, जो एक पॉलिसी का तसलसल है, वो बहुत ज़रूरी है। अज़हर, आपकी तरफ आती हूँ, अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, किस तरह ये जो इशू है इसको एड्रेस किया जाए, जो इस वक्त हमारे घर के अंदर का मसला है, जिसकी वजह से हमें इस वक्त एक मुख्तलिफ नौइयत के जो हैं वो ख़तरात लाहक हैं, बिलखसूस एक ऐसे टाइम पे व्हेन यूनिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर।
देखिए जी, मसला तो सिर्फ एक है, वो सबके सामने है कि जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको जेल से निकाला जाए। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मुतालबा है। अब उसका हल क्या है, किस तरह वो, क्या कानूनी तौर पे होना है या दूसरे तरीके से होना, ये देखना होगा। अगर कोई ये कहे कि हम एक शख्स को जब सजा हुई हुई है और अदालतों ने दी हुई है और अदालतों से ही वो रिलीफ मुमकिन हो सकता है, तो क्या उसको एज ए पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल केसेस बिल्कुल अपनी जगह, बट हैविंग सेड दैट यहाँ पे ये भी हमने देखा है कि एक केस अगर लगता है उसमें रिलीफ हो रही है तो दूसरा केस फौरन जो है वो तैयार एकदम से हो जाता है, तो उससे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नजर उनको वो एक नजर आती है, वो नजर आता है कि उनको एक मौका मिलता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कहने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो केसेस है उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो ये केस है जिस पे इमरान खान साहब को सज़ा हुई हुई है, असल मेन तो वो है। उसके अलावा 9 मई का केस है, वो डिफरेंट चीज़ें। अब बात फिर वही है कि अब क्या इसको हम उनकी रिहाई को, क्योंकि उनका तो एक ही मुतालबा रहा है कि जब जंग शुरू हो रही थी, जब टेंशन थी, अनफॉर्चुनेटली अजहर साहब मुझे इंटरजेक्ट करना होगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। अजहर जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड लेट्स होप दैट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क को दरकार है इस जंग में, इस वक्त जो यूनिटी दरकार है वो आने वाले दिनों में हमें नजर आए। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।